most asked question, and a lot of people have questions about it, doubts about it, and I get a lot of DMs and comments under the YouTube video asking me about who my immigration agent is who helped me to come to Canada. Okay, so all of this you guys wanted to know, so I wanted to talk about this in detail, my experience and all of it, and whomsoever have all the concerns, I think I'll be able to answer them all. Let's see. Okay, so everybody wants to know who my agent is, which company did I choose. So I chose Nationwide Visas. Now let me talk about the detailed version of it and also my experience. But I have a bad and a good experience. Let me talk about the bad experience first, then I would go on to the good part. Before choosing the final immigration company, I chose Apex Visas, and these people ruined my life. They ruined 2 years of my life. And these people were torture and a complete झोल. अभी उनका क्या स्टेटस है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत बेकार था. First thing. Second thing, I have a full detailed video about this. The first link that I'm going to put it in the description box would be about Apex Visas. So you guys can go watch. तब मेरा नया एक्सपीरियंस था, मैंने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है, तो वो देखना. हाँ, अब मैं बात करती हूँ जब 2 साल मेरे वेस्ट हो गए, then what? So I was obviously doubtful to go with any company because मैंने पैसे वेस्ट कर दिए थे Apex Visas में. तो तुम ऐसा होता है ना कि अब दोबारा पैसे लगाएं, किसके साथ लगाएं, क्या करें, फिर से वेस्ट ना हो. ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे in short. So I had basically my dad had seen this article on newspaper regarding Nationwide Visas, so we thought of giving it a try. So that was the first thing. So we visited, ये नेहरू प्लेस में है दिल्ली में Nationwide Visas. अगर दिल्ली में हो तो मैं बता रही हूँ. Once we visited the company Nationwide, I did talk to the agent there and stuff, but I wasn't that sure because वो हल्का सा होता है ना trust issues का problem. I wasn't that sure. So I had got the opportunity to meet the owner there of Nationwide, and once I had a word with the owner, Mr. Rajiv. Once I had a word with him, I gained some sort of trust and I thought of giving it a try. एक जैसे होता है ना कि थोड़ा सा संतुष्टि मिली कि हाँ हो जाएगा. उन्होंने ऐसे बात करी, उन्होंने ऐसा विश्वास दिलाया कि हो जाएगा as per the situation. Like one thing that I really want to talk about this company is either they won't take your case. अगर तुम्हारा केस डामाडोल है, they won't take it and they'll be like कि ये नहीं हो सकता. Okay? दूसरा चीज ये, अगर तो तुम्हारा केस हो सकता होगा तो वो लेंगे और फिर शॉर्ट करवा कर ही देंगे. दे विल गिव यू दैट एश्योरेंस कि हो ही जाएगा, डोंट वरी. हमारे पास आइल्स टेस्ट था ऑब्वियसली, हम तनवीर और मेरे पास, तो वो चीज थी, उसके लिए हमें वेट नहीं करना पड़ा. हमने अपना वेस्ट इनसे करवाया था, बैचलर का था, पर मेरी मास्टर्स का अभी तक हमने करवाया नहीं था वेस्ट WES, तो वो हमने कॉम्बिनेशन वाइज से करवाया. थैंकफुली वो आ गया. आईएएस का रिजल्ट मेरे पास था, वेस्ट होकर आई थिंक इट टुक अ मंथ और सो. जैसे ही वेस्ट आया और जो भी स्कोर हमारा बन गया CRS स्कोर, उसके विद इन अ वीक जो भी नेक्स्ट उनका ड्रॉ निकला कनाडा गवर्नमेंट का, नेक्स्ट ड्रॉ में हमारी फाइल पिक हो गई, हमारा ITA आ गया. और वो ITA का हम वेट कर रहे थे 2-3 साल से और आ ही नहीं रहा था. और एक तरीके से होता ना, अब तो आएगा ही नहीं यार, हो ही नहीं सकता. पर वो जब आ गया ना, आई वाज नॉट एबल टू बिलीव द होल सिचुएशन. But thankfully ITA आ गया और फिर पूरी जर्नी, our whole journey began. तो now I'll tell you what really happened. ITA आने के बाद you get 2 months of time when you have to submit all your documents, and then the actual process would start of the Canada people reviewing your file and everything, and then you would get the COPR. But those 2 months I was again concerned and dependent on the agent, the company Nationwide, that I don't want any kind of hassle, I don't want any kind of alaspan because I've paid the company. Now I really want them to work on my case. That was the situation. But मुझे थोड़ा सा गेन कैसे ट्रस्ट हुआ, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी ड्यूरिंग माई WES. आई वॉज, क्योंकि अगर तो मेरी मास्टर्स क्लियर नहीं होती वेस्ट के अंदर, अगर वो अप्रूव नहीं करके देते, मेरा स्कोर नहीं बनता. मास्टर्स के बेसिस पे ही हम आ सकते थे कनाडा. तो हम बहुत कंसर्न थे, एंड टॉप ऑफ दैट हम तो कंसर्न थे ही थे जस्ट बिकॉज आई हैड अ वर्ड विद द ओनर मिस्टर राजीव वाज आल्सो. तो जस्ट बिकॉज वी हैड अ वर्ड विद मिस्टर राजीव ऑन द फर्स्ट डे, तो हमने उनसे इन कॉन्टैक्ट थे और वो भी अपने आप इनिशिएटिव ले रहे थे हमारे केस पे. एंड उन्होंने क्या किया, जब लेट नाइट उनको रिजल्ट आया, बिकॉज रिजल्ट वगैरह सब वो ही ट्रैक कर रहे थे, तो उनको लेट नाइट अराउंड 10-11 रिजल्ट आया था और उन्होंने तभी व्हाट्सएप किया. ही वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट. इनफैक्ट हमारा रिजल्ट थोड़ा डिले भी हो गया था वेस्ट का, तो उन्होंने स्पेशली मेल किया,
और वो हमें कैसे पता चला? हमें नोटिफिकेशन आई क्योंकि हमारा नंबर रजिस्टर्ड था या ईमेल रजिस्टर्ड थी कि उस पे सारी मेल आई। तो रात को द ओनर इज एक्चुअली बीइंग इन टच विद द WS एंड ट्रैकिंग माय मास्टर्स का सिचुएशन लाइक। तो जब सब कुछ आ गया, उनका मैसेज आता है कांग्रेचुलेशंस तुम्हारा वैसा आ गया, अब तो ITA आना ही आना है। तो हम अभी भी थोड़ा डामाडोली थे कि अरे वो तो बोलेंगे ही एंड ऑल ऑफ दैट, बट ये थोड़ा सा हुआ कि चलो यार ओनर साथ में कर रहे हैं तो होगा ही होगा। तो थैंकफुली वो चीज हो गई, वहां पे थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप हुआ। फिर ITA आ गया, जो उन्होंने बोला वो बात सच हो गई, तो वो चीज हुई। पर अभी भी हम और 2 महीने के उसमें ना थोड़ा सा हमको था ऐसा कि अभी भी प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, जब 2 साल में इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी। देन व्हाट हैपेंड वाज, अब क्या होता है तुम्हें केस ऑफिसर असाइन हो जाता है, हर कंपनी में ये होता है। जब एजेंट से बात हो गई, फिर जब वहां से रजिस्टर्ड एंड एवरीथिंग, यू वुड बी असाइंड अ केस ऑफिसर। तो हमें केस ऑफिसर मिला कंपनी का। मेरी जो एपेक्स वीजा की केस ऑफिसर थी ना, वो तो यार झंड थी, मतलब मैं बता भी नहीं सकती उसके बारे में, तो पता नहीं, जो भी छोड़ो। तो मेरे को वो ही पर्सपेक्टिव से मैं इस केस ऑफिसर को उसी नजरिए से देखती थी। बट नेशन वाइड में जो केस ऑफिसर थी, शी वॉज जेम ऑफ अ पर्सन, शी वॉज सो हार्ड वर्किंग। इनफैक्ट जब ये ITA आया ना, हम गोवा में थे ना, मेरे बर्थडे मना रहे थे, तो हम गोवा में थे और वहां पर जब आया सेलिब्रेशन गॉट डबल्ड एंड एवरीथिंग, एंड इट वॉज स्टिल 3 days और 2 days लेफ्ट कि जब मुझे वापस आना था गुड़गांव। बट मुझे लगातार वो 2-3 दिन केस ऑफिसर का फोन आया, शी वॉज कीपिंग अ ट्रैक ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड शी वॉज लाइक कि मुझे ये चाहिए, आप अभी भेजो, ऐसे करो वैसे करो। मुझे ये नहीं लग रहा था आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई केस। आई वॉज रिलीव्ड बिकॉज देयर वॉज अनदर पर्सन हु वॉज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द बैगेज। द सर्विस वॉज ऑन पॉइंट, आई डिड नॉट टेक एनी स्ट्रेस, एवरीथिंग वॉज टेकन केयर ऑफ। तो सिचुएशन क्या है कि हमने दे दिया, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, सब कुछ हो गया। अब टेक्निकली इमिग्रेशन कंपनी के हाथ में नहीं होता है। नाउ वंस यू सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ, यू हैव टू वेट। The Canada people would reply you back as per their own sweet time, depending on how many backlogs they have or whatever their reason is. हम maximum 6 months लगते हैं, हमको 6 months और 1 week लगा, जिसमें हमें बहुत ups and downs हुए feelings के, but 6 months and 1 week के बाद हमको COPR मिला। ये थी मेरी स्टोरी और थैंकफुली सब कुछ स्मूथली हो गया। मैं 2-3 चीजें बताऊंगी जो मैंने नोटिस करी जब मैंने एपेक्स और नेशन वाइड के उसमें गई, और ऑल्सो मैं 2-3 चीजें तुम्हें बताऊंगी, तुम ध्यान रखना। एक तो ऑब्वियसली वो ICCRC के रजिस्टर्ड में हो। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि हमने एपेक्स वीजा से पूछा ही नहीं, और इनफैक्ट जब हमको हुआ कि नया नया एक्सपीरियंस था, कोई नहीं पूछता ऐसा जब तक तुम्हें फुल नॉलेज ना हो। जब पूछा तो पता चला कि हाँ हेलो वो तो है ही नहीं, मुझे हाँ हमारे को कल ही हम रजिस्टर्ड हुए हैं। तो मैंने कहा वाह चलो। फिर उसके बाद ऑल्सो चेक देयर रिव्यूज ऑन गूगल एंड हाउ वेल डू दे रिस्पॉन्ड टू दोज, सो दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, जब मैं एपेक्स गई तो 4-5 बंदे बैठे थे एज पर एम्प्लॉइज एंड एजेंट्स जो टेक केयर कर रहे थे। मैं नेशन वाइड गई तो अप्रोक्सीमेटली 80 to 100-110 लोग, that's what I can think of. There was a big office where you'll see n number of people sitting and taking care of the cases. Also the second difference था ना, नेशन वाइड वॉज ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कैनेडा, कि हम कनाडा ही करवाते हैं, 100% करवा देंगे, रेस्ट एश्योर्ड हम करवा देंगे। दूसरी कंपनीज हम न्यूजीलैंड भी करवा देंगे, ऑस्ट्रेलिया भी करवा देंगे, कैनेडा करेंगे, बताओ कौन सा आपने फटाफट करा देंगे ऐसे वाला। तो मुझे ये चीज भी, अगर ये सिर्फ कनाडा ही करा रहे हैं तो दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन पर्टिकुलर एलिमेंट एंड दे वुड गिव देयर 100%. दैट वाज द पर्सपेक्टिव आई हैड एंड थैंकफुली everything was positive. So guys, you have to be very careful about the immigration lawyer / company / agent that you would choose. Do all the research before booking one, because some of them are fake and they would show you some really fake visas and they would give you that and would give you some fake promises कि हम तो आपका करवाई देंगे, and they would show you n number of fake visas. Make sure these people, the company that you go, these people are registered. And also some people have this perspective हम खुद कर लेते हैं, ठीक है तुमने करना है करो, मेरे को उसमें कुछ ऐसे बोलना नहीं है। बट एक एडवाइस आई वुड वांट टू गिव इज, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, बिकॉज वी गाइस आर नॉट एक्सपीरियंस्ड ऑफ पुटिंग द फाइल्स इन, या हाँ एक्सपीरियंस हो जाए, तुम कर रहे हो, यू हैव दिस गुड एक्सपीरियंस, यू हैव बीन डूइंग इट गुड इनफ, व्हाई डिडंट वी डू इट? वी हैड दिस थिंग दैट वी माइट डू सम डॉक्यूमेंटेशन का झोल, हमने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दी, क्योंकि देयर इज दिस फुल डॉक्यूमेंटेशन ट्रेल दैट गोज इन। उसमें अगर कुछ मिस हो गया, वी वुड वेस्ट आवर टाइम
and money. So we wanted someone experienced. तो इसलिए हम agent के through गए. Although some people give you free advice, but they don't take the responsibility of the outcome कि हाँ चलो मैं करवाता हूँ या कुछ. Free advices बहुत मिलेंगी, so do your research properly. So guys, if you have any doubts, anything, you can ask me in the comment section. Also, I would leave their number. Nationwide visas, उनसे डायरेक्ट बात करनी है, उनसे कर लो, जो भी howsoever you guys are comfortable, you can talk to them and see what works best for you. I will leave their number in the description box. Second, third, why am I making this video? I hope this video was paid and I hope these people make me their ambassador and stuff. But I am making this video because from last 1 year I am getting a number of DMs and comments under my specifically that video. हमें detail में बताओ which is the company, please tell us the name, your experience and stuff. But I hope I have cleared all the doubts and I hope this video helps you. Also, another reason why I am making this video is there are a lot of frauds happening and a lot of fake companies, especially in India. I don't know about any other country, so cannot comment on that. But in India, I have had good experience of a bad company, and also some of my friends know कि हाँ थोड़ी और कंपनीज है, मैं नाम बता देती हूँ, जैसे Y-Axis का अच्छा नहीं है हिसाब किताब. तो just because I don't want you guys to go through the hassle and I don't want you guys to go through the fraud agents, so that's why this video is here. I hope this is helpful. And if you again have any doubts, you can put it in the comment section.